السلام علیکم ناظرین، لرن آن لائن وتھ فیضان خان میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ ہمارے خصوصی اسپیکر ہیں مولانا مصطفیٰ مدنی صاحب، جن کی بصیرت افروز تقریر سے سوچنے اور سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق ہوتی ہے، دل کی دنیا بدلتی ہے، حب الوطنی اور ایثار و اخلاق کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ آپ بھی سنیے اور اپنے اندر انقلابی تبدیلیاں محسوس کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ ذی الحجہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے پہلے عشرے میں عبادت بہت پسند ہے، اس لیے ہمیں عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے جو ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ ناظرین کرام، عبادت کی تمام قسمیں وہ اس موقع پر اہم ہیں۔ نماز، روزہ، صدقہ و خیرات، ذکر و اذکار، غریبوں اور مسکینوں کے کام آنا، کسی کی مدد کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند ہیں، تو ہم اس پہلے عشرے میں ذی الحجہ کے اس کا اہتمام کریں۔ بہت سارے لوگ چند قسم کے سوالات کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت ہو جائے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اگر قربانی ہم بعد میں کریں، پہلی تاریخ کو نہ کریں، پہلی کا مطلب 10 ذی الحجہ کو پہلے دن نہ کریں، دوسرے یا تیسرے دن کریں، تو کیا ایسی صورت میں ہم اپنے ناخن اور بال وہ پہلے دن کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ناخن اور بال کے کاٹنے کا تعلق قربانی سے نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ قربانی کرنے کے بعد کاٹیں، بلکہ اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ آپ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں اپنے آپ کو اس چیز سے روک لیں، اور جب 10 تاریخ آ جائے یعنی قربانی کا دن، تو پھر اس دن آپ اپنے بال اور ناخن کاٹنے کے سلسلے میں آزاد ہیں۔ اسی طرح موجودہ حالات میں ایک ہی شہر میں کئی جگہ نماز ہوتی ہے، اس لیے عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ قربانی کریں، یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ عید کی نماز کا وقت ہو جائے، گزر جائے، اس کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ جو چیز منع ہے وہ ہے عید کا وقت ابھی نہیں آیا، آپ نے صبح صادق سے پہلے قربانی کر دی، تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر قربانی نہیں ہے، بلکہ وہ گوشت کھانا ہے یا جانور ذبح کرنا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں جنہیں ہم سوچتے ہیں ضروری ہے کہ ان کی وضاحت کر لیں، ان کے بارے میں غور کر لیں۔ اسلامی تعلیمات میں اس طرح کی چیزیں یا ایسی پابندیاں نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اور آپ مشقت میں پڑیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات واضح ہیں اور ان کا مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ ہم یہ محسوس کریں کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، قربانی کے ایام ہیں، اور اس میں ہمیں قربانی پر توجہ دینی ہے، قربانی کرنی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ شعائر اپنانے ہیں، کچھ ایسا انداز اپنانا ہے جس سے یہ محسوس ہو کہ ہم قربانی کرنے والے ہیں اور ہمیں قربانی کرنی۔ قربانی کے جانور کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں ہیں جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ قربانی کا جانور، اس سلسلے میں اگر آپ کے پاس بکرا یا دمبا ہے تو اسے دانتا ہونا ضروری ہے۔ 1 سال کے بعد عمومی طور پر جانور دانتا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جانور تو 1 سال کا ہو گیا، تندرست بھی ہے، لیکن اس نے ابھی دانت نہیں توڑے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ ہاں یہ 1 سال سے اوپر کا ہو گیا ہے، تب تو آپ کے لیے گنجائش ہے، لیکن اگر مشکوک ہے تو ایسی صورت میں ایسے جانور سے بچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
एक सहाबी जिन्हें इजाज़त दी थी वो इसी शक्ल में दी थी कि उन्हें यकीन था कि वो 1 साल के हैं, यानी उनके पास जो जानवर है वो 1 साल का है। इसीलिए हमें और आपको इसका एहतमाम करना चाहिए। दूसरी चीज़, जानवर को अच्छा देख कर ले, तंदुरुस्त देख कर ले, बेहतर देख कर ले, क्योंकि ये अल्लाह की राह में आप कुर्बानी करने जा रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी वजह से आप बेजा मशक्क़त बर्दाश्त करें, उसकी वजह से कोई ऐसा आप तकल्लुफ़ करें जिसे आप बर्दाश्त ना कर सकें, लेकिन अपनी हैसियत के लिहाज से अपने तौर पर अच्छे जानवर की कुर्बानी करें। अच्छे जानवर, इसका इंतखाब आप खुद करें, लेकिन कुछ ऐसे उयूब, कुछ ऐसी कमियां जो जानवर में अगर पाई जाती हैं तो उसकी कुर्बानी आप नहीं कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर जानवर ऐसा है कि वो लगड़ा है और उसका लगड़ापन बहुत खुला जाहिर है, नुमाया है, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते। वो काना है, नुमाया तौर पर काना है, उसके कान कटे हुए हैं, नुमाया तौर पर कटा हुआ है, उसकी सींग टूटी हुई है, नुमाया तौर पर टूटे हुए हैं, तो ऐसी सूरत में आप उस जानवर को ऐबदार समझें और ऐसी सूरत में उसकी कुर्बानी ना करें। लेकिन अगर हल्का फुल्का है, जो ऐब की शक्ल नहीं अपना पा रहा है या उसे ऐबदार नहीं कहा जाएगा, तो ऐसी सूरत में उस जानवर की कुर्बानी करने में कोई हर्ज नहीं है और शरीयत में उसकी मुमानियत नहीं है। हमें और आपको यह भी देखना है कि जानवर, एक सवाल ये होता है, बहुत सारे लोगों के जहनों में तशवीश आती है, पूछते हैं कि जानवर को अगर खसी कर दिया गया है तो फिर ये तो उसके अंदर ऐब है। हकीकत में अगर गौर किया जाए तो जानवर इससे ऐबदार नहीं होता है, बल्कि तंदुरुस्त हो जाता है, अच्छा हो जाता है। आप जरा गौर करें कभी, क्या आप मार्केट से ऐसे जानवर का गोश्त खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं जो खसी ना हो? नहीं, ऐसा नहीं है। हम और आप उन्हीं जानवरों का गोश्त पसंद करते हैं जो खसी होने की बुनियाद पर तंदुरुस्त होते हैं। तो जानवर के अंदर ये चीज ऐब नहीं है, बल्कि हकीकत में उसकी तंदुरुस्ती की अलामत है, और उसके लिए अल्लाह तबारक तआला ने जो उसका निज़ाम बनाया है, जो उसका सिस्टम बनाया है, ऐसी सूरत में वो जानवर तंदुरुस्त जानवर हो जाता है, इसलिए इसे ऐब नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे जानवर वो पैदा होते हैं और उनके सींग नहीं होता है, उनके सींग निकलता ही नहीं है, बेसींग होते हैं, तो ऐसी सूरत में वो जानवर ऐबदार नहीं कहलाएंगे। बहुत से जानवर ऐसे होते हैं कि उनके अंदर नस्ली तौर पर बाज ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो आम उर्फ में नहीं पाई जाती है। अगर ऐसी चीजें मौजूद हैं और वो ऐब नहीं है, बल्कि उस जानवर की तबीयत और उसकी खासियत या इलाकाई तौर पर या नस्ली तौर पर उसके अंदर पाई जाती हैं, तो ये सारी चीजें ऐब नहीं होंगी, बल्कि ये उस जानवर के लिए खूबी मानी जाएगी और आपको उस जानवर को कुर्बानी करने में कोई दिक्कत नहीं है। जानवर के सिलसिले में, ये जानवरों के सिलसिले में कुछ मसाइल ऐसे आते हैं जो बड़े मुख्तलफी हैं, और उस सिलसिले में हमें और आपको अपना जहन कुशादा रखना चाहिए। इसलिए मैं इसका जिक्र कर दूं ताकि बहुत सारे लोग इस तशवीश में रहते हैं, उन्हें अपना जहन कुशादा रखना चाहिए और इत्मीनान की बुनियाद पर कुर्बानी करनी चाहिए। मसला, जानवरों के कुर्बानी के सिलसिले में एक मसला आता है कि क्या भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं। यकीनन कुरान मजीद में जिन 4 किस्म के जानवरों का तस्करा है, उस पसे मंजर में जहां कुर्बानी की गुफ्तगू की गई है, हस्र नहीं है, यानी बाउंडेशन नहीं है वहां पर। उस आयत में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि इन 4 के अलावा किसी जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती है, लेकिन बहरहाल कुर्बानी के पसे मंजर में उसका तस्करा है, और उस तस्करे में जिन जानवरों का तस्करा है वो ऊंट के नरमादा हैं, 8 किस्म के जानवर हैं, लेकिन नस्लें उनकी 4 हैं, उसमें भैंस का तस्करा नहीं है। लेकिन भैंस की एक क्वालिटी यह है कि वो पालतू जानवरों में से है और हलाल जानवरों में से है। बहुत से जानवर सिर्फ हलाल है, वो पालतू नहीं है, ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं की जाएगी। लेकिन चूंकि भैंस वो आम तौर पर पालतू है और हलाल है, और हिंदुस्तान के पसे मंजर में उसके कुर्बानी की इसलिए भी गुंजाइश है कि यहाँ पर गाय की
कुर्बानी पर पाबंदी है। इस पस मंज़र में अगर किसी को इत्मीनान है तो कुर्बानी करे और किसी को इत्मीनान नहीं है तो वो फिर कुर्बानी ना करे। बिल्कुल इसी तरह कुर्बानी के अय्याम के सिलसिले में इख्तिलाफ। बहुत सारे लोग 3 दिन जो अय्याम इशराक के हैं उसमें कुर्बानी को जायज़ करार देते हैं, लेकिन चौथे दिन को जायज़ करार नहीं देते। अगर आप मुतमईन हैं तो 4 दिन कीजिए, नहीं मुतमईन है तो मत कीजिए, लेकिन ये जानिए कि पहले दिन ही कुर्बानी आपको करनी चाहिए। अगर आप एक जानवर कुर्बान कर रहे हैं तो आपको अफजल दिन का इंतखाब करना चाहिए और वो पहला दिन ही कुर्बानी का अफजल है। इसी तरह एक और मसला आता है कि क्या अगर कोई इंतकाल कर गया, फौत हो गया है, तो क्या उसकी तरफ से कुर्बानी करेंगे या नहीं करेंगे। यह मसला भी मुख्तलफी है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देखा जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के हालात देखे जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हिदायत इस सिलसिले में नहीं मिलती है। यानी ऐसा कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना सवाल किया गया और ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त ऐसी कोई हदीस या कौल छोड़ा है जिसकी बुनियाद पर वाज़ेह बात कही जा सके। इज्तिहादी तौर पर मय्यत की तरफ से कुर्बानी के सिलसिले में बहुत सारे उलमाए किराम जवाज़ के कायल हैं और उनकी बुनियाद यह है कि वो ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वसीयत की कि उनकी तरफ से कुर्बानी करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जब कुर्बानी करते तो कभी कभी आपने जो उस मौके पर अल्फाज अदा किए हैं अपनी ज़ुबान मुबारक से वो ये थे कि अल्लाह मेरी तरफ से और मेरे उम्मतियों की तरफ से कबूल कर ले। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों में वो लोग भी थे जो इंतकाल कर गए और वो लोग भी थे जो अभी पैदा नहीं हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल की बुनियाद पर और उस वसीयत की बुनियाद पर बहुत सारे लोग मय्यत की तरफ से कुर्बानी के जवाज़ के कायल हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह खुसूसियत थी, इसलिए जो लोग फौत कर गए हैं उनकी तरफ से इंतकाल न करें। आपको किस पर इत्मीनान है उस पर अमल कीजिए, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। एक चीज जरूर जहन में रखिए कि शरीयत ने माली सदकात के सिलसिले में गुंजाइश रखी है। बदनी इबादात मय्यत की तरफ से अदा नहीं किए जाएंगे, लेकिन माली सदका मय्यत की तरफ से करने की पूरी गुंजाइश शरीयत में मौजूद है। इस पस मंजर में अगर देखा जाए तो अगर आप मय्यत की तरफ से कुर्बानी करेंगे तो कबूल करने वाला अल्लाह तबारक तआला है और तय बात है उसे आप गरीबों में तकसीम करेंगे, उसका गोश्त आप लोगों तक पहुंचाएंगे तो आपको सवाब जरूर मिलेगा। आपको यह भी जहन में रखना चाहिए कि कुर्बानी का गोश्त वो कुर्बानी का गोश्त है, सदक़े का गोश्त नहीं है। उसमें आप खुद भी खाएं, रिश्तेदारों को खिलाएं, पड़ोस को खिलाएं, गरीबों और मिस्कीनों को खिलाएं। उसमें किसी को महरूम ना करें, सबके लिए आप उसको यकसा रखें ताकि उसका सबको फायदा पहुंचे और खुद भी आप उसका इस्तेमाल करें। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले मैंने कुर्बानी को सिर्फ खाने के लिए इजाजत दी थी, स्टोर नहीं कर सकते थे, रोक नहीं सकते थे, लेकिन लोगों अब सुन लो कि कुर्बानी का गोश्त खाओ भी, खिलाओ भी और रोक कर भी रख सकते हो। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी है। कुर्बानी में सबसे असल क्या है? वो है आपके दिल का जज्बा। ना अल्लाह को गोश्त पहुंचेगा ना खून पहुंचेगा, जो मिलेगा उसे और जिसकी बुनियाद पर वो फैसला करेगा और जिसकी बुनियाद पर आपके कुर्बानी की अहमियत होगी वो है तकवा, आपके दिल का जज्बा। इसको कभी कमजोर ना होने दीजिएगा। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।